So now I'm going to present uh, an outline, and I'm going to ask, uh, in fact, just let me open the right one for you, and then I'll ask you a few questions about that outline. There's not much wrong with it, but still, I think we can improve upon that outline of an argumentative essay because अभी हमने argumentative essay के structure पे बात की. So an outline tells us about how the entire essay has been structured. So here is a topic: are social media platforms hazardous for our well-being? We have a thesis statement here. While social media platforms offer unprecedented connectivity and access to information, growing evidence suggests that they can significantly harm our mental, emotional, and societal well being, raising concerns over privacy, misinformation, and addiction. So, here is a stance which tells that, okay, fine, there are some advantages, जो कि पूरे इंट्रोडक्शन का एक रिफ्लेक्शन हमें यहाँ मिल रहा है कि कनेक्टिविटी भी है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन भी है, बट देन देयर इज हार्म, मेंटल, इमोशनल, सोसाइटल वेलबींग के प्राइवेसी, मिस इन्फॉर्मेशन, एडिक्शन. तो कुछ मेजर इश्यूज हाईलाइट हो गए. अब जो आउटलाइन आप देख रहे हैं, अब केस स्टडीज तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है यहाँ पे कि इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ है. केस स्टडी आ रही है 2023 से, द लांसेट से, रिसर्च मैगजीन से, कि 30% of heavy social media users between ages 14 to 24 have reported to have heightened levels of anxiety, depression, which is directly linked to online interaction and cyberbullying. आज की न्यूज इंटरेस्टिंग है. आई थिंक यू वुड हैव गॉन थ्रू दैट कि ऑस्ट्रेलिया has now restricted the use of social media to those who are above 16 years of age. So 16 years की एज तक यू आर नॉट अलाउड टू यूज सोशल मीडिया. ऑस्ट्रेलिया की आज की न्यूज ये आई है. सो अब ये उस कॉन्टेक्स्ट में टॉपिक बहुत ज्यादा कंटेम्प्रेरी डिस्कशन में आ जाता है क्योंकि इट्स नाउ कमिंग फ्रॉम द ग्लोबल नॉर्थ, क्योंकि जनरली हम समझते हैं कि शायद ग्लोबल साउथ से या कंजर्वेटिव सोसाइटीज में ये ओपिनियन आ रहा होता है, but now it's coming from global north, not the north of the world. I hope you understand what do we mean by global north. So अब वो न्यूज भी इस कॉन्टेक्स्ट में आती है. फिर आता है एडिक्टिव नेचर ऑफ सोशल मीडिया. अगेन अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकेट्री से 50% ऑफ सोशल मीडिया यूजर्स के हवाले से केस स्टडी कि how it has exhibited signs of addictive behavior, akin to gambling addiction, and algorithm designed to keep users engaged. फिर स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन पे आ रही है. 2020 MIT की डिस्कशन आ रही है कि फॉल्स न्यूज स्टोरीज हैं 70% मोर लाइकली टू बी रीट्वीटेड देन ट्रू वंस. और ऐसा, एंड वी हैव एक्सपीरियंस दैट कि फॉल्स स्टोरीज जो है दे गेन मोर अटेंशन, और जब उसका काउंटर आता है कि फॉल्स है तो उसके बारे में कम लोगों को पता लगता है. सो वी हैव एन MIT स्टडी इन सपोर्ट टू दैट, और वो स्पेसिफिकली कोविड के दिनों में जो बात थी उस हवाले से ये स्टडी हुई थी. प्राइवेसी वायलेशंस हैं, डाटा मिसयूज है. 2018 की फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल की बात हम कर सकते हैं कि हाउ मिसयूज ऑफ पर्सनल डाटा ऑफ 87 मिलियन यूजर्स रेज ग्लोबल कंसर्न्स. एंड I think you would remember the Cambridge Analytica scandal after the first time when Trump was elected 2016 में जब इलेक्ट हुआ तो, और उसके बाद सारा चलता है. और फिर बॉडी इमेज इश्यूज हैं केस स्टडी के. 2021 की स्टडी है कि बॉडी इमेज जो जर्नल है उसने फाउंड दैट 60% of young adults using Instagram developed unhealthy body image issues, and I think we associate with that as well, particularly teenage girls influenced by edited and idealized images, and then people want to, and then they have lesser confidence on themselves, so there are issues. So it again has a negative impact. So political polarization and echo chambers. 2022 study by Pew Research Center revealed that social media platforms amplify political division. 70% of users are reported to be interacting only with like-minded people, which exacerbates polarization. And that happened during 2016 as well, कि जब हमने कहा था वो echo chambers का बड़ा impact था यूएस इलेक्शंस के ऊपर, एंड ग्लोबली भी फिर देखा जाता है कि उस पर था. नॉट नेसेसरली दिस टाइम इस इलेक्शन की कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है. ट्रम्प का जो पहले वाला था और था. एंड इफ यू आर गोइंग थ्रू माय कॉलम्स इन द डेली मिनट मिरर, तो उससे भी आपको काफी अंदाजा हो रहा होगा कि हाउ डिफरेंट इट इज फ्रॉम
प्रीवियस इलेक्शंस इन यूएस। खैर वो एक और डिस्कशन, हम जब डेमोक्रेसी पे किसी टॉपिक पे बात कर रहे होंगे तो उस वक्त आएगी। साइबर बुलिंग एंड ऑनलाइन हैरेसमेंट केस स्टडी 2021, यूनिसेफ की highlighted that one out of three teenagers globally experience cyberbullying, often leading to long-term emotional trauma. And then disruption of sleep patterns पे National Sleep Foundation 2022 की रिपोर्ट, और इफेक्ट्स ऑन यूथ एंड चिल्ड्रन की केस स्टडी, और पाकिस्तान पर्सपेक्टिव पे एक केस स्टडी अलग से हमने डाल दी कि द राइज ऑफ फेक न्यूज 2022 में कि पॉलिटिकल टर्मोइल में। डिजिटल राइट्स फाउंडेशन ने जब कहा था कि 65% ऑफ द न्यूज शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाज आइडेंटिफाइड एज फॉल्स और मिसलीडिंग व्हिच इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन एंड इंक्रीज टेंशंस। फिर आ जाता है वे फॉरवर्ड, वही शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज, एंड देन वी हैव द कंक्लूजन एंड समरी स्टेटमेंट। नाउ दिस इज सपोज्ड टू बी an essay which is structured in an argumentative mode, और मैंने आपसे शेयर किया है कि argumentative essay किस तरह का होता है। My question is that does this outline relate to that structure which I shared with you? Is it on the same structure? And if not, then what's wrong with this outline? Anyone can respond to this question. Is there something wrong with this outline? There is no antithesis statement. Thank you very much. There is no antithesis. और मायदा का भी comment आ गया कि there is no antithesis. Yes, Faizan also says there is no antithesis. So the entire outline is structured in an expository mode. सारे arguments माने जा सकते हैं, ओके ठीक है, but antithesis, Huria also says antithesis is not given. So एंटीथीसिस, वी नीड एट लीस्ट वन मेन हेडिंग, और फिर आउटलाइन इसकी इस तरह से डिवाइड होनी चाहिए थी कि ये कर सकते थे कि हम ये लिख देते कि हाउ सोशल मीडिया इज बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड और ह्यूमैनिटी, और या फिर सिंपली लिख देते बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया, और वो थोड़े से लिख देते, हम एक दो तीन लिख देते जिनको हाईलाइट कर देते, क्योंकि हमने ज्यादा बात तो करनी उस पर है जिसके फेवर में हम लिख रहे हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट 8 or 9 पैराग्राफ्स ऑन दैट। और फिर हम लिखते कि हाउ सोशल मीडिया इज हैजर्डस फॉर आवर वेल बीइंग। तो अब फिर क्या होता है, एग्जामिनर को आउटलाइन से पता लग जाता है कि ठीक है, देयर इज अ रिबटल, यहाँ पे अग्रीमेंट भी है, यहाँ पे डिसएग्रीमेंट भी है। अगर आउटलाइन इसी तरह से चलती रही तो एग्जामिनर को ये होगा कि अच्छा, ये आउटलाइन तो एक्सपोजिटरी ऐसे के लिए या डिस्क्रिप्टिव ऐसे के लिए बनी है। सो इससे एक मसला ये हो सकता है कि आपने, हो सकता है वहां पे एंटीथीसिस डिस्कस भी किया हो, बट एग्जामिनर आउटलाइन देखकर ये सोचने लगे कि अच्छा, कैंडिडेट को तो समझ ही नहीं है कि ये आर्गुमेंटेटिव मोड में चलना था, बिकॉज यू नीड टू क्रिएट अ डिफरेंस बिटवीन एन आर्गुमेंटेटिव ऐसे एंड एन एक्सपोजिटरी ऐसे। सो अब इससे आपको थोड़ा ये आइडिया हो रहा होगा कि जो मैंने कहा कि आने वाले सेशंस में देयर विल बी फ्यू टास्क, जो कि 5-5 मिनट का छोटा सा टास्क आएगा, गूगल फॉर्म पे आपके पास आ रहा होगा, आप उसे रिस्पॉन्ड करेंगे, मेरे पास आ जाएंगे सारे आपके रिस्पॉन्स, और हम उसको लेकर, ताकि ड्यूरिंग सेशंस, नॉट नेसेसरली रिलेटेड टू स्ट्रक्चर, समटाइम्स रिलेटेड टू कंटेंट, जिस तरह अभी ये मैंने क्वेश्चन किया, तो ये 30 सेशंस को हम ये भी नहीं रखेंगे कि जस्ट बम्बार्डिंग आइडियाज और आउटलाइन देखिए और ये हो गया, बिकॉज दैट वोंट सर्व द पर्पस। We'll be engaging in very interesting tasks in these 30 lectures in 30 days. So ताकि आप जब वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में हो, तो एग्जामिनेशन हॉल में भी होता ये है कि वो जो पेपर है आपको, आपके माइंड को बहुत से टास्क में एंगेज कर रहा होता है। सो मैं छोटे छोटे टास्क इस तरह से करूंगा कि आपकी एक वो प्रैक्टिस हो सके, या थिंकिंग प्रैक्टिस हम कर सकें, या फिर रिस्पॉन्सिवनेस को हम किसी तरह से मजीद एजाइल बना सकें कि एग्जामिनेशन में आप किसी भी तरह की सिचुएशन को टैकल कर पाए, और जल्दी जल्दी से आप टाइम भी मैनेज कर सके। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू हु सेंट अ रिस्पॉन्स हियर। मैं कुछ के नाम नहीं बता सक रहा, बिकॉज ऑल ऑफ यू सब ने जो है रिस्पॉन्स किया, और जितने ज्यादा आते हैं, सो इट्स इनकरेजिंग फॉर मी कि ठीक है, आप फॉलो कर रहे हैं इस बात को। सो अब इसको हम रिफ्रेस किस तरह कर सकते थे कि हम पहले लिख देते हो कि ठीक है, पहले ये लिख देते हाउ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर हैजर्डस फॉर आवर वेलबींग, अगर इसी को लिखना है, या पहले लिख देते कि जब उससे पहले ये लिख दें कि ओके, थीसिस स्टेटमेंट आ गया, हाउ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर यूजफुल फॉर आवर वेलबींग, या हाउ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बेनिफिशियल, और उसके बाद दूसरा आ जाता है कि हाउ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर हैजर्डस, और उसमें फिर ज्यादा आती हैं, और फिर बातें फिर वे फॉरवर्ड, और उसके बाद हम अपना कंक्लूजन का पार्ट जो है वो आउटलाइन में रिफ्लेक्ट कर देते। सो ये तो हो गया आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे का। इस पर कोई क्वेश्चन किसी का, एनीवन हु वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन, और देयर इज एनी कंफ्यूजन और एम्बिग्विटी?
या इस टॉपिक के हवाले से कुछ आप पूछना चाहें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैजर्डस फॉर आवर वेल बीइंग? नो। ओके, सो हम एक और लेयर की तरफ आगे बढ़ते हैं अब। एंड आई, अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी जी, प्लीज प्लीज कहिए। आवाज आ रही है? जी जी। सर अगर हमारा टॉपिक होता कि इज सोशल मीडिया यूजफुल फॉर अस, तो हम इसमें जो आउटलाइंस हैं, हम्म ये जैसे 10 आउटलाइन हमने बनाई है, इसके लिए मतलब ये हैजर्डस है, हम्म नुकसानदेह हमारे लिए। अगर ये हमारे लिए बेनिफिशियल होता तो हम 10 या 9 जो भी बनाने थे वो इसलिए बना लेते, और 2-3 इसके वो बता देते हम जो नुकसान है। नुकसान है आप उस, बिकॉज क्योंकि आप अब यूजफुलनेस पे ज्यादा एम्फेसिस कर रहे हैं ना। आप इसमें भी ये कर सकते, जिस तरह ये आउटलाइन है, ये क्वेश्चन कर रहा है हैजर्डस है, आप कहते हैं नो इट इज नॉट हैजर्डस। उसका उसके पॉजिटिव ज्यादा, उससे पॉलिटिकल अवेयरनेस हमें ज्यादा आ रही है, एक आपने ये बता दिया। दूसरा, उससे कनेक्टिविटी ज्यादा इंश्योर हो रही है। तीसरा, उससे जो है कल्चरल ग्लोबलाइजेशन में कंट्रीब्यूशन हो रहा है। चौथा, वो ई कॉमर्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये आप बता सकते हैं। पांचवा, वो एक सोर्स ऑफ अर्निंग है, रेवेन्यू जनरेशन अपॉर्चुनिटीज हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के दौर में जो है पीपल आर अर्निंग थ्रू दैट प्लेटफॉर्म। छठा, आप ये कह सकते हैं कि उससे कल्चरल एसिमिलेशन हो रही है, जिससे पॉलिटिकल फेलियर्स को हम किसी ना किसी तरह से टैकल कर पा रहे हैं बाय इंश्योरिंग दैट देयर इज अ कल्चरल इंटरेक्शन एंड पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है वो हम उससे इंश्योर कर रहे हैं, देयर इज अ कल्चरल एक्सचेंज। फिर एकेडमिक एक्सचेंज भी हो सकता है। आप जिस तरह सोशल यूट्यूब की आप बात कर सकते हैं, देयर आर लेक्चर्स अवेलेबल देयर, एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंश्योर्स के पीपल कैन हैव एक्सेस टू एजुकेशन एट देयर डोर स्टेप। ठीक, तो अब क्या हुआ, हमने बहुत सारे बेनिफिट, 7-8 तो ये मैंने आपको अभी बता दिए, और मैं इसी पे आपसे पॉजिटिव आउटलाइन भी शेयर करूंगा। सो देखें, इसको हम उस कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हैं। तो जब भी आपके पास ऐसा टॉपिक आता है, तो इस तरह के टॉपिक में आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अब ये एक आउटलाइन मैंने ही बनाई हुई थी और मैंने ही आपको उसका बता दिया कि अब बेनिफिट्स भी हैं। अब ये आपने उस वक्त डिसाइड करना है कि आप किस को ज्यादा बेहतर तरह से कर सकते हैं प्रेजेंट। और अच्छा, सुफियान का क्वेश्चन आया है कि आर वी टू jot down antithesis? No, 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 you're not supposed to jot down the antithesis in every paragraph. करना ये है कि आपने फर्स्ट पैराग्राफ में थीसिस स्टेटमेंट तो अपना दे दिया, पता लग गया ना कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं। सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट किया हाउएवर या ऑन द अदर हैंड या कॉन्ट्रोरली या कॉन्ट्रास्टिंगली, इस तरह लिख के उसमें आपने एंटी थीसिस बता के उसकी सपोर्ट में जो 3-4 बातें हैं वो लिख दी कि इन बातों की वजह से ये कहा जाता है कि ये है। फिर आप क्या करते हैं कि थर्ड पैराग्राफ जो है एक छोटा सा ट्रांजिशनल पैराग्राफ आप लिखते हैं, जिसमें आप ये बता दें कि बट लेकिन आप इस ऊपर सेकंड पैराग्राफ वाली बात को की रिबटल कर रहे हैं, एंड यू डिसएग्री विद दिस ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। और फिर अब एक एक करके 7-8-10 पैराग्राफ आप लिखकर उसमें डिटेल से अपने थीसिस को सपोर्ट करते जाएंगे, और जो ऊपर एंटी थीसिस सेकंड पैराग्राफ में दिया था उसको काउंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि रिबटल होती रहे, तो एक कॉन्टिन्यूटी रहेगी। Because but if you give an antithesis for your every idea, so it will create a problem, because then it will oscillate like a pendulum your entire essay. So उससे क्लैरिटी फिर नहीं आती, क्योंकि आपने तो एक टॉपिक सेंटेंस देना होता है ना, इसमें आपने साइड लेनी है कि क्या कर रहे हैं। सो जब आप रिबटल कर रहे हैं तो हाँ, उस सूरत में एंटीथीसिस आ जाता है ना, कि आप जब ये कर सकते हैं हम कि सेकंड पैराग्राफ वाली बात को काउंटर करने के कॉन्टेक्स्ट में जब हम उसकी तरफ जाते हैं, बट वो एक होगा, एक पासिंग रेफरेंस के तौर पे आएगा, जिसको आप रिफ्यूज करते हुए आगे बढ़ते जा रहे होंगे। ठीक है सुफियान, आई होप दैट मेक्स क्लैरिटी इट क्लियर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? जी, फैसल इब्राहिम कह रहे हैं इट मींस दैट विदाउट एंटीथीसिस, यस, विदाउट एन एंटीथीसिस देयर इज नो आर्गुमेंट। आप आर्गुमेंटेटिव मोड में है ना। एक्सपोजिटरी में यह है कि यू आर प्रेजेंटिंग फैक्ट्स एज दे आर, क्योंकि अभी एक्सपोजिटरी का स्ट्रक्चर तो अभी हमने नहीं देखा, लेकिन उसमें आप सामने रखते हैं चीजें जैसे हैं, और यू अग्री विद द स्टेटमेंट। यहां पे ये हो रहा होता है कि आपने एंटीथीसिस दिया और फिर थीसिस भी आगे एंटीथीसिस, अब एक को सपोर्ट किया एक को डिस्प्रूव किया, तो आर्गुमेंट जनरेट हो गया, तो आर्गुमेंटेटिव मोड हो गया आपका। जी, एनी अदर क्वेश्चन? हम्म अच्छा, कंक्लूजन फैजान, आप कंक्लूजन जो है सब एसेज में आप जहन में ये रखें कि यू विल प्रोवाइड अ समरी स्टेटमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द कंक्लूजन दैट विल रीइटरेट द आइडिया ऑफ योर थीसिस स्टेटमेंट। ठीक हो गया?
वो एक या दो जुमले के अंदर आप कर देंगे। फिर आप 6-7 जुमलों में जो आपका के मेजर पॉइंट्स थे, उनको आप उनसे जो मेजर टेक अवेज हैं वो स्टैब्लिश कर देंगे, जिसमें आप डेफिनेटली ये बता रहे होंगे कि जो ऑपोजिट साइड है वो डिस्प्रूव इन बेसिस के ऊपर होती है, और 1 2 3 4 5 इन बातों की वजह से वो डिस्प्रूव हो जाती है, क्योंकि इनका वेट ज्यादा है। वंस यू हैव डन दैट, तो उसके बाद आप अपना फाइनल रिमार्क दे देंगे, और उससे पहले आप अपना वे फॉरवर्ड दे चुके होते हैं कंक्लूडिंग पैराग्राफ से पहले। जी, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, okay, I wanted to go for at least 3 types today, but हमें I think time की paucity, ये discussion इसी तरह से होती है, but मुझे था at the back of the mind कि maybe हम सिर्फ 2 types of essays की example ले सकें। तो जो हमारे पहले 3 सेशन चल रहे होंगे, आज एक हो गया, अब दूसरा और तीसरा आना है, उसको हम थोड़ा सा इस पे चलाऊंगा मैं, कि मैं 6 types of essays विद 1 एग्जाम्पल ईच आपके साथ रखता जाऊंगा। वंस वी आर डन विद दीज 3 सेशंस, तो उसमें क्योंकि स्ट्रक्चरल क्लैरिटी आ चुकी होगी, तो फिर हम फिर हमारे ये जो आगे 27 सेशंस होंगे, तो उसमें ये होगा कि वील गो विद एटलीस्ट 4 or 5 टॉपिक्स इन एवरी सेशन, समटाइम्स 3 टॉपिक्स। तो वो आपके साथ फिर आउटलाइन आ रही होंगी, और रिसर्च पेपर भी आपके पास ग्रुप में आते जाएंगे। इनफैक्ट आई विल आल्सो क्रिएट अ जूम चैनल, so what you can do is that you can also share your email addresses with me, so within 2-3 days Zoom चैनल के ऊपर आप सब जब ऐड हो जाएं, तो वो ये होगा कि हम वो WhatsApp वाले हैसल से निकल जाएंगे, और Zoom चैनल के ऊपर आपके पास सारा कंटेंट पड़ा होगा, एंड यू कैन एक्सेस दैट इजीली एवरी टाइम। जी, elaborate structure of thesis statement of an argumentative essay। थीसिस स्टेटमेंट को देखें, इसको ओवर कॉम्प्लिकेट अपने लिए ना करें, इसको सिंपल रखें कि थीसिस स्टेटमेंट में यू नीड टू गिव योर स्टांस एंड द रीजन इन सपोर्ट ऑफ दैट स्टांस। वन थिंग इन आर्गुमेंटेटिव ऐसे वुड भी, जो कि अभी भी आपने देखी, कि आप अदर साइड ऑफ द कॉइन को थोड़ा बता देते हैं, वाइल कह के लिख दें कि वाइल दिस इज इन फेवर ऑफ दिस साइड, लेकिन फिर आप उसके साथ ये कि क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन में ये किया होता है कि आप दोनों साइड्स को बता चुके होते हैं, तो आप फिर थीसिस स्टेटमेंट इस तरह से फ्रेस करते हैं कि व्हाइल दिस साइड प्रेजेंट्स दिस 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 और दैट 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 एंड, लेकिन फिर आप कहते हैं बट, और उसको करके फिर आप अपने सपोर्ट वाली बात करके और उसकी रीजन सामने रख देते हैं। दिस कैन बी डन इन अ सिंगल सेंटेंस, समटाइम्स यू माइट नीड 2 sentences फॉर दिस। Recorded lectures, sometimes it gets a little difficult, because there are some corporate reasons for not sharing recorded lectures. But let's see what we can do. You're here in the class, so because once I start giving recorded lecture, no one would come to the class and they would say, ठीक है, बाद में recording ले लेंगे। ये भी तो एक बात होती है ना, ठीक है, तो बड़ी मजबूरी वाली बात हो तो फिर उस वक्त हम इसको देख सकते हैं। Sir, what about the outlines you shared in the lecture? Outlines would be sent to you. As I said, that outlines would be shared in the WhatsApp group, all the outlines, because in every file we have 10 outlines. So once we are done with all 10, so then you will get them. And as I mentioned, that we will create, we need your email addresses so that I may add you to the Zoom channel. Once all of you are added to the Zoom channel, so all the entire content and all the slides would be there in the Zoom channel, and you can access them anytime whenever you open the Zoom channel link. So the Zoom channel, शायद आपने पहले से, if you have not used them, so इस बार आप देखेंगे कि वहां पे ये है कि cloud के ऊपर you will always have access to them, and you can download it from there as well. ठीक है, so what I want is कि all of you can send me your email addresses so that I can add you through your email address to the Zoom channel link, and on the Zoom channel you will have access to all the slides and all the outlines. ठीक है, so I hope that that tension is resolved here. Any other question? अस्सलाम वालेकुम सर, कैन यू हेयर मी? Yes, please. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हम आर्गुमेंटेटिव ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं, लाइक पॉइंट्स इन फेवर देन Hmm. पॉइंट्स अगेंस्ट दैट टॉपिक एंड देन वी टेल आवर ओन स्टांस इन द इंट्रोडक्टरी एंड द कंक्लूजन पैराग्राफ। तो इस तरह का कोई हो सकता है इसके में? आउटलाइन में आप कह रही हैं? आउटलाइन में नहीं, मैं वैसे ही बात कर रही हूँ, लाइक पूरे ऐसे के अंदर पहले हमने जो भी फेवर में टॉपिक है उसके पहले जी पहले फेवर में फेवर में लिखते हैं आधे पॉइंट्स।
अच्छा, उसमें यह है कि अभी जो कंटेम्प्ररी स्टाइल है जिसको हम कह रहे हैं, उसका तरीकाकार ये है कि योर फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स मस्ट inform the reader that you are writing in an argumentative mode. ठीक है। अब होता ये है कि अब जब हम ये करते हैं कि हमने इंट्रो लिखा, इंट्रो के बाद 5-6 पैराग्राफ एक साइड पे लिख दिए, तो उसमें ये हुआ कि 6 to 7 पैराग्राफ तक एग्जामिनर्स को ये लग रहा है कि आप चल रहे हैं एक्सपोजिटरी मोड में या डिस्क्रिप्टिव मोड में। और फिर वो एंड हो सकता है वो उस पॉइंट तक पहुंचे ही ना जहां से आप रिबटल शुरू कर रहे हैं। ट्रेडिशनल मोड एक काफी अरसे तक ये रहा था कि आप पहले अपनी साइड पे लिखें, फिर उसके बाद आप ऑपोजिट लिखें और फिर उसको एक और पैराग्राफ में काउंटर करें, क्योंकि जब आप ऑपोजिट साइड देते हैं तो उसे काउंटर भी करना है ना। इट्स नॉट ओनली अबाउट टू प्रेजेंटिंग टू साइड्स, इट्स अबाउट काउंटरिंग द अदर वन एज वेल। रिबटल देनी है आपने आर्ग्यूमेंटेटिव मोड में। और फिर अच्छा, और एक और बात ये भी है कि देखें स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ एसेस जो हैं उनके ऊपर डिफरेंट कैंडिडेट्स की प्रेफरेंसेस भी हो सकती हैं। समवन इज मोर कंफर्टेबल विद आर्गुमेंटेटिव एंड समवन वुड बी मोर कंफर्टेबल विद एक्सपोजिटरी। बट इसका एक बड़ा सिंपल तरीका यही है कि जो कंटेम्प्ररी स्टाइल है, गिव योर थीसिस इन द इंट्रोडक्शन, सेकंड पैराग्राफ द ऑपोजिट साइड, थर्ड से आप उसको रिबटल शुरू करें, ताकि एक सीक्वेंस में आप रिबटल करते हुए सपोर्ट करते हुए आगे जाएं, वे फॉरवर्ड दें और फिर कंक्लूड करें। आई होप इट सिंप्लीफाइज इट नाउ। यस, थैंक यू सर। सर मेरा एक और भी क्वेश्चन है। जी जी प्लीज, जितने क्वेश्चन है पूछें। कि सर अगर फॉर एग्जांपल हम किसी आर्गुमेंटेटिव ऐसे को एज एक्सपोजिटरी ऐसे लिखते हैं एंड एक्सपोजिटरी को एज एन आर्गुमेंटेटिव लिखते हैं, लाइक उसको गलत सेंस में लेके लिखते हैं, तो विल देयर बी अ डिडक्शन ऑफ मार्क्स इवन दो आवर कंटेंट इज ऑन द स्पॉट? देखिए, टेक्निकली द प्रॉब्लम लाइज इन दिस के आपने गलत इंटरप्रेट कर दिया ना, टॉपिक को समझा नहीं आपने, उसको लिया। यू मे बी लकी विद दिस कि कभी कभी ये होता है कि एग्जामिनर देख ले कि इंग्लिश अच्छी है। मतलब मैं अपनी अगर बात करूं, मेरे सामने कभी आ जाए, और इट्स ऑल्सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि कभी कोई लकी हो गया उसको। लेकिन अगर टेक्निकल मेरिट पे देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द चांसेस, ज्यादातर 90% चांस या 99% इनफैक्ट ये है कि सिर्फ एक यही रीजन काफी होता है फेल करने के लिए कि दिस वाज सपोज्ड टू बी एन आर्गुमेंटेटिव essay एंड the essay was written in expository mode, so वो बैकफायर ही करेगा। बिकॉज इसका उसमें फिर फायदा क्या हुआ कि आर्गुमेंटेटिव, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपोजिटरी, डिफरेंट टाइप ऑफ एसेस वो आपको देते हैं। इफ यू गो थ्रू द पास्ट पेपर्स आपको ये पता लगेगा कि प्रोवर्बियल भी एग्जिस्ट कर रहा होता है, आर्गुमेंटेटिव भी वहां पे मौजूद होता है, एक्सपोजिटरी और डिस्क्रिप्टिव भी दिए होते हैं, एट टाइम्स नैरेटिव भी अलग हमें नजर आते हैं। सो परसुएसिव भी 5-6 टाइप के हमें एक ही पेपर में नजर आने लगते हैं। 3-4 तो जरूर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, कोई वैरायटी दे रहे होते हैं। सो उसका पर्पस थोड़ा यही होता है कि जो अपनी स्टाइल ऑफ राइटिंग के करीब कोई लिख रहा है, या ये पता लगे कि भाई ये डिफरेंशिएट भी कर पा रहे हैं कि नहीं। सो टू स्टे ऑन द सेफ साइड बेहतर है कि आप इसको समझ पाए। तो अल्लाह ना करे कि कभी ऐसी सिचुएशन हो। अगर हो जाती है तो ऑन अ लाइटर नोट एंड ऑन अ सीरियस नोट, दोनों के दुआ जो है वो फिर ज्यादा काम आ जाती है इस तरह की सिचुएशन में। इफ इट इज रिटन इन योर फेट कि यू आर गोइंग टू एंटर द ब्यूरोक्रेसी, then even your mistakes cannot stop you from entering it. So I hope कि तकदीर में आप सबके इसी तरह लिखा हो कि कुछ भी हो जाए and you enter bureaucracy and become a very effective civil servant in the end. जी, anything else? सुफियान का एक मैसेज। जी जी रामीन, आप बोलिए। Is there any book you suggest we could take help from, or there are any written essays available? Okay, I'll share 10 essays with you during the session. Uh, but as far as if you're saying that you are going to read some essays to prepare for exams, so all the books that are available in the market, they have only addressed the topics that were given in the past papers. So, and the content there is quite outmoded and outdated. So the better way is that you need to apprise yourself from the current issues, the current happenings, because you're already preparing for the paper of current affairs, and go by the research papers, research paper based preparation. Research paper, and I'll share with you research papers here on the Zoom channel and also in the WhatsApp group.
ताकि आपको कंटेंट का इशू ना रहे इस पे। जी अच्छा, सुफियान का क्वेश्चन आया है, देयर आर इश्यूज ऑफ नेटवर्क। हाँ, उसको हम देख लेंगे आज वैसे भी, बिकॉज ऑफ ऑल दैट्स हैपनिंग अराउंड टुडे, वी नो दैट आई वाज एप्रीहेंसिव दैट कुछ ना कुछ जो है नेटवर्क का इशू तो रहेगा आज भी और कल भी शायद, बट थैंक गॉड दैट वी वर इन अ पोजीशन टू कनेक्ट। Yes, the class will be 5 days a week, 5 credit hours हम करेंगे इसको, इनफैक्ट इट्स नाउ मोर देन एन आवर के हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसी तरह होता है। तो 5 credit hours हम देखेंगे वीक में, 1 hour 1 day, that is easier to digest because you will be preparing for other papers as well, and we have kept a time जो कि ऐसा है कि इसमें 1 hour की क्लास ही सूट करती है। सो 2 classes वुड बी ऑन वीकेंड, सैटरडे संडे, और 3 classes विल बी स्प्रेड। वो मैं आपसे वीकली शेयर कर लिया करूंगा। अभी कल भी हमारी क्लास है, मंडे भी होगी, ट्यूसडे भी होगी। वील टेक अ ब्रेक ऑन वेंसडे, देन वील टेक अ क्लास ऑन थर्सडे, क्योंकि अभी इस वीक का स्केड्यूल है। सो टुमारो, सैटरडे आज हो गई, संडे भी होगी, देन वील हैव इट ऑन मंडे, आफ्टर दैट ट्यूसडे, फिर वेंसडे को एक ब्रेक हम लेंगे, और फिर अगेन वील हैव अ क्लास ऑन थर्सडे इवनिंग। ठीक है, तो ये तो इस वीक, एक वीक इस तरह से हमारा हो जाएगा जो कि 5 है। सो 5 classes वीक हम रखेंगे, सो दैट वी कैन रैप इट अप इन 1.5 odd month, बिकॉज फास्ट ट्रैक कोर्स का पर्पज यही है कि 30 लेक्चर्स जितना जल्दी हो, बिकॉज यू शुड हैव टाइम टू रिवाइज ऑल द कंटेंट जो आपके पास है, 1 month एटलीस्ट आपके पास बच जाए आपके फाइनल एग्जाम्स आने से पहले, क्योंकि जो आपने सेशन में किया होगा, यू नीड टू वर्क ऑन दैट एज वेल। जी, एनीथिंग एल्स? ओके, गुड टू सी अ थम्स अप फ्रॉम योर साइड, उमर। अब हो सकता है वाली बात तो अलीजर मेहदी, अब अल्लाह ना करे कि बंद तो नहीं होगा, अल्लाह खैर करेगा। जिस टाइम पे हमारी क्लास हो रही होगी उस टाइम तक जो कुछ होना है कल हो चुका होगा, तो अल्लाह करे कि नेट ऑन हो। अगर बंद हुआ तो ठीक है, वी वुड फाइंड अनदर वे, हम किसी और दिन उसको फिर एडजस्ट कर लेंगे क्लास को, सो वी कैन हैव सम थिंग जो कि बाद में हो सकता है। ठीक है, तो वो कोई मसला नहीं, अल्लाह खैर करेगा। ठीक है। ओके, एनीथिंग? फवाद इज क्लैपिंग ऑन दिस रिमार्क। अच्छा ठीक है, चलें, अच्छा लगा आपको ये। हाँ, और कोई? जी, और कोई बात जो आप करना चाहें, या आज हम अभी इसको वी कैन कॉल इट अ नाइट, और फिर हम कल दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह, hoping that everything remains constant and we are not behind any firewall tomorrow. So see you tomorrow inshallah. Allah Hafiz.